Hello students, today will be discuss about metaphysical poetry। आज हमारा टॉपिक है मेटाफिजिकल पोइट्री, इसके बारे में बात करेंगे। ओके। इन द जैकोबिन एज appeared a new literary form of poetry known as metaphysical poetry. John Dryden used this term to 17th century poetry when he made a derogatory remark for Donne. He affects the metaphysics in his amorous verses, where nature only should resign and perplexes the minds of the fair sex with nice speculations of philosophy when he should engage their hearts. Okay. Dryden disliked Donne's stylistic extravagance, mainly witty comparisons, and his tendency towards the hyperbolic abstractions in the lives of the poets. Dr. Samuel Johnson also remarks, with reference to Cowley, that about the beginning of the 17th century appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets. Metaphysical poetry was basically a reaction against the deliberately smooth and sweet tones of the 16th century. It adopted a new style which highly energetic, uncommon and vigorous. Generally, it was a term well as styled novelty and quaintness, but at present it is applied to a group of the 17th century poets who were directly or indirectly influenced by Donne, employ the same poetic manner and style in both secular as well as in religious poems. देखिए, जैकोबियन युग में एक नवीन प्रकार की साहित्यिक विधा प्रकट हुई जिसे मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जाना जाता है। जॉन ड्राइडन ने शब्द का इस्तेमाल 17वीं शताब्दी में किया, जब उन्हें डैन के लिए एक अपमानित करने वाला कथन कहा। वह आध्यात्म को प्रभावित करता है अपने प्रेम में लिप्त पदों में, जहाँ प्रकृति शासन करती है और दार्शनिकता वाले मस्तिष्कों को उलझाती है। ड्राइडन डने की अमर्यादित विद्या को पसंद नहीं करता था। इन द लाइव्स ऑफ पोइट में डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में लेखकों की एक जाति प्रकट हुई जिन्हें आध्यात्मिक कवियों मेटाफिजिकल पोइट्स का नाम दिया गया। 16वीं शताब्दी की मधुरता सरलता के विरुद्ध मेटाफिजिकल पोइट्री एक प्रतिक्रिया है। इसकी शैली बहुत ही ऊर्जात्मक, असामान्य और उत्साही है। ये एक प्रदर्शनात्मक शब्द है जो कि शैली की श्रेष्ठता और अनोखेपन को प्रदर्शित करता है, लेकिन वर्तमान में इसका तात्पर्य एक विशेष समूह के कवियों से है जो ढंग से प्रभावित हैं। इस समूह के कवि सांसारिक और धार्मिक कविताओं की एक खास तरीके और खास शैली में लिखते हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मेटाफिजिकल पोइट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन इन मेटाफिजिकल पोइट्री। फर्स्ट है डिस्प्ले ऑफ लर्निंग। The main aim of metaphysical poet is to display the treasure of learning. All the poets were highly educated, and book of knowledge might be written from the scholarly allusions in Donne and Cowley alone. Dr. Johnson remarks in these connections. The metaphysicians sometimes drew their conceits from disease of learning, not very much frequented by common readers of poetry. This is the reason why it becomes difficult to comprehend by common reader. देखिए इसमें क्या है, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, विद्वता का आडंबर। इसमें कवियों का मुख्य लक्ष्य था ज्ञान निधि का दिखावा करना। इस समूह के सभी कवि बहुत ही ज़्यादा शिक्षित थे। इस संदर्भ में डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, मेटाफिजिकल कवि अपने कल्पनात्मक विचारों और विद्वता के कारण सामान्य पाठकों के लिए नहीं हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन टू न्यू थॉट्स एंड आइडियाज़। Metaphysical poets always try to give expression to new thoughts and ideas which were never expressed earlier. They were conscious only to be different in their thought but never worried about their dictions.
देखिए, जो मेटाफिजिकल कवि हमेशा कुछ ऐसा प्रदर्शित करते थे जो कभी ना हुआ हो, मतलब यूनिक करते थे। वे अपने विचारों को लेकर सचेत थे, पर उन्होंने कभी अपनी शैली पर नहीं सोचा। सर वॉल्टर स्कॉट ने भी कहा है कि कुछ ठीक उसी तरह दृष्टिकोणों से खेलते थे जैसे एलिजाबेथ यूकिन शब्दों से खेलते थे। ओके, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल पोएट्री। Metaphysical poetry is intellectual, making appeal to mind and very little to ear. Emotions are shaped and expressed by logical reasoning. They never used common language, but the language of commerce and scientific speculation. As a result, rhythm is as intricate as thought. Next, reaction against Elizabethan poetry. Metaphysical poetry was a reaction against Elizabethan poetry. Former poets discarded letters poetry, which was melodious and aesthetic. Metaphysicals adopted a new poetic style, which was unduly coarse and rugged. देखिए, जो मेटाफिजिकल काव्य एलिजाबेथ काव्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। मेटाफिजिकल्स ने एक खास, विशेष और कठोर शैली को अपनाने के लिए काव्य को चुना। नेक्स्ट है यूज ऑफ फार-फेच्ड इमेजेस एंड ऑकल्ट कंपैरिजंस। मेटाफिजिकल पोएट्री कैरेक्टराइज्ड विद डिसिमिलर इमेजेस और डिस्कवरी ऑफ ऑकल्ट रिसेम्बलेंस इन थिंग्स, which was totally unlike. They always wished to express something unexpected and surprising through far-fetched images and hyperbolical expressions. देखिए, मेटाफिजिकल काव्य का विशेष गुण असामान्य प्रतिक्रियाओं की खोज था और असामान्य चीज़ों में तुलना में थे। वे कुछ विस्मयकारी प्रदर्शित करना चाहते थे। उदाहरण के लिए काउले ने 2 अलग अलग स्त्रियों से अपने प्यार की तुलना 2 अलग अलग देशों की यात्राओं से की है। इसमें जो मेटाफिजिकल काव्य का विशेष गुण है अस्पष्ट शैली। इस समूह के कवि हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनके काव्य को कठिन बनाए। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर स्टाइल। Obscurity is also a feature of metaphysical poetry. Poets of this school in the task of trying to find the verbal equivalent for the states of mind and feeling made their poetry difficult to understand. Coleridge remarks, the style of metaphysical is the reverse of the distinguished to many of our most recent versifiers in one conveying the most fantastic thought in the most character, the other in the most fantastic language conveying trivial thought. Okay, फिर है note of mysticism. Metaphysical poets are often known as mystical poets. The poetry of Donne, Herbert, Grosjean, Vaughan, and Treherne had a note of mysticism, a sense of unity in all life. They believed that God is supreme and the whole world is more shadow of Him. Their mystic vision pierces through the shadows of the world and explains them symbolically. जो मेटाफिजिकल कवि, रहस्यवादी कवि भी जाने जाते थे, डॉन, क्रॉनशाह, वॉगन आदि सभी कवि विश्वास करते थे कि ईश्वर सर्वोपरि है और संसार उनकी परछाई, और यही बात उन्हें रहस्यवादी बनाती है। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड amorous poetry. Metaphysical poetry can be divided into 2 categories, amorous and religious. The main writers of religious poetry are Herbert, Grosjean, and Vaughan. Carey and Suckling are the exponents of amorous poetry. देखिए, जो मेटाफिजिकल काव्य दो काव्य का है, काव्य तो प्रेम का और धार्मिक रचनाओं के मुख्य कवि हैं हर्बर्ट और वॉगन। प्रेमिका काव्य के लेखक हैं फेरी और समलिंग। ओके,
इसमें धार्मिक और प्रेमलिप्त काव्य, मेटाफिजिकल काव्य दो प्रकार का है, प्रेम का और धार्मिक का। धार्मिक रचनाओं के कवि हर्बर्ट वॉगन। देखिए जो मेटाफिजिकल कवि हैं यानी आध्यात्मिक कवि, उनका योगदान मेटाफिजिकल काव्य का पिता जॉन डन को कहा जाता है। हालांकि एलिजाबेथ युग के थे पर इनको भावनाएं एलिजाबेथ युग की नहीं थी। इन्होंने एलिजाबेथ युग की सरल साधारण कल्पना और प्राकृतिक प्रेम को नहीं अपनाया। इन्होंने सरल काव्य को अपने चातुर्य से स्पष्ट और जटिल बनाया। इन्होंने कई कविता और गीत लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, एयर एंड एंजल्स, अ वेलडिक्शंस, हेमन टू गॉड द फायर। इनके जो अगले इम्पोर्टेंट कवि हैं जॉर्ज हर्बर्ट, इन्हें समूह का संत समझा जाता था। इनका अधिकतर काव्य इनकी मृत्यु के बाद हुआ है, प्रदर्शित हुआ था एंड 1633 में इनकी 160 कविताओं का संग्रह था टेम्पल में पब्लिश हुआ। वास्तविक रूप में रिचर्ड क्रॉन्शा एक एंग्लिकन थे पर बाद में वे कैथोलिक हो गए थे। वे स्पेनिश रहस्यवादिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनकी कविताएं इसी पर आधारित थीं। इन्होंने प्रेम कविताओं के साथ साथ रिलीजियस पोइट्री भी लिखी थी। हेनरी वॉगन भी एक मिस्ट्री पोइट थे। ये वेन जॉनसन से अत्यधिक इम्प्रेसिव थे। इनकी कविताएं बहुत जैसे चर्च महोत्सव, बचपन की स्मृति, अनंतता पर आधारित थी। इनकी जो पोइट्री थी वो रिटरेट से विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता ओड ऑन द इमिटेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से इम्प्रेसिव थी। अब्राहम कॉल इस समूह के लास्ट मेंबर थे। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रथम पोइट्री प्रकाशित की। ये एक बौद्धिक कवि थे। एंड्रू मार्शल एक चातुर्य कवि थे। वे सांसारिकता को प्रदर्शित करते थे। ये प्रकृति को अपनाना चाहते थे तथा गार्डन, एप्लेटन हाउस, अपॉन द हिल, ऑन द ग्रोव, एट विलवंडल इनकी प्रसिद्ध फेमस पोइट्री हैं। हर युग में मेटाफिजिकल कवियों के कुछ प्रशंसक रहे हैं। 17th सेंचुरी में अस्पष्ट और अरुचिकर माने जाते थे। 18th सेंचुरी में सभी आलोचक और विद्वानों ने निर्णय दिया कि इनकी कविताएं सतही हैं। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनकी कविताओं को महत्व मिला और काव्य में इनको उच्च स्थान मिला।